Hello students, let's start the third part of magnetic effect of current. Yes, in this video we will discuss the Lorentz magnetic force, Fleming left hand rule and all related to these topics. Now first, Lorentz force. So Lorentz force is a current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force, which means that a moving charge in a magnetic field experience a force. So when we place a current carrying conductor in a magnetic field, it will experience a force. Such force that is applied on that conductor which is placed in a magnetic field, that effect, that force is called as Lorentz force. Now understand. So if we place a magnetic field, the charge is placed in a magnetic field as shown in the diagram. B is the magnetic field, Q is the charge, and V is the velocity that is represented by V, and I is the direction of the current. The angle between the magnetic field and V is theta. Now the force that is acting, that is perpendicular to the magnetic field, that force is acting on the charge. It is clear in the earlier class that charge which is stationary does not have any effect due to the magnetic field. The magnetic field can affect the charge only when it is moving. So stationary charge, there is no force acting on it. स्टेशनरी चार्ज पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता. जितना भी फोर्स एक्ट करता है वो केवल और केवल किस चीज़ पर करता है? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब कोई चार्ज मूव करता है. स्टेशनरी चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता. सो for a moving charge we have to find the force. So force depend on two things. First is V, velocity, and second is the magnetic field. So both are the vector quantities. So the vector product is the cross product. So V cross B. So V cross B is VB sin theta. So the formula for the magnetic field force is F equals to QVB sin theta. N cap represents the direction of the force. Already known that unit vector represents the direction of the force, that is as represented. So it is clear that कोई भी moving charge है, हमारा सर्कल में लेते हैं, यहाँ हमारा करंट I फ्लो कर रहा है. अगर करंट I फ्लो कर रहा है किसी के अंदर, या हमने कहा यहाँ पर करंट I है और हमारा कोई भी कंडक्टर यहाँ पर है, हम कोई किसी भी चार्ज को मूव करवाएं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, यहाँ पर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है. क्रॉस का मतलब क्या है? दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज इनसाइड. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, या एक्स से रिप्रेजेंट हमने कर दिया. सो करंट कैरिंग कंडक्टर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस करें तो यहाँ पर चार्ज का मूवमेंट होगा, और चार्ज के मूवमेंट की वजह से इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज लोरेंज फोर्स. नाउ अंडरस्टैंड दिस फोर्स. So that theta angle which is between the V and B. V is the velocity at which the particle is moving, the charge is moving at the velocity V, and B is the magnetic field which is applied on that charge. Still again I will explain you that same thing, that charge is moving. If charge is stationary, मैग्नेटिक फील्ड के केस में, यानी मैग्नेटिज्म के केस में जो भी हम पढ़ा अब तक, सो मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता उस चार्ज पर जो कि स्टेशनरी है. बट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज स्टेशनरी है चाहे मूविंग है, इट हैव इफेक्ट. उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता है, चाहे कि चार्ज स्टेशनरी है और इट विल मूविंग. नाउ कम ऑन द टॉपिक दैट charge is moving, so that the force which is acting on the charge is QVB sin theta. Q is the charge on that particular, V is the velocity at which it is moving, B is the magnetic field, and theta is the angle between the I and B. Now taking the case if I is in opposite direction to that of V, so IDL that represents the direction of the field, it has always been represented as that angle between the B and F is 90 degree. It is always been considered. ये आपको हमेशा चेक करके चलना है कि हमारा जो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है वो हमेशा क्या लेना है? 90 डिग्री. In such a case, if charge is at rest,
क्लियर है, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो हमारा वेलोसिटी ज़ीरो होगी और फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये लोरेंस फोर्स की बात कर रहे हैं, इसी फोर्स को हमने अभी डिस्कस किया है। नाउ सो स्टेशनरी चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो क्लियर है। कम ऑन द सेकंड वन, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री, अगर एंगल की बात करें 0 और 180 डिग्री है तो 0 डिग्री पर भी वैल्यू क्या होगी, 0, और 180 डिग्री पर भी वैल्यू क्या होगी, 0। इन सच अ केस देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो जाए वी की या अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, उन केस में, दोनों ही केस में जो हमारी वैल्यू होगी फोर्स की, दैट इज 0। कम ऑन द थर्ड वन, इफ एंगल इज 90 डिग्री, इन सच अ केस इफ एंगल इज 90 डिग्री, अगर एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है तो इस केस में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम कंसिडर करते हैं कि अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट मीन्स एफ एम इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू वी बी, एफ मैक्स इट इज क्यू वी बी। सो नोट इट डाउन इन योर रफ कॉपी कि हमारी दो वैल्यूज होती हैं। मिनिमम वैल्यू कब होती है, जब चार्ज स्टेशनरी है। इन सच अ केस स्टेशनरी चार्ज के लिए फोर्स, जो लोरेंस फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो क्या होगा, 0। अगर मैक्सिमम फोर्स की बात करें तो जब एंगल 90 डिग्री होगा, इन सच अ केस साइन थीटा के लिए वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इज 1। सो मैक्सिमम वैल्यू फॉर लोरेंस फोर्स इज एफ मैक्स इक्वल्स टू क्यू वी बी। Come on the next one, Fleming's left hand rule. So if we place our fingers, आप भी अभी अपने साथ साथ वीडियो की कंसिडर कर लें कि इफ़ वी प्लेस अवर फिंगर्स एट 90 डिग्री, अब अगर हम अपनी फिंगर्स को 90 डिग्री पर प्लेस करें, तीनों फिंगर्स जैसे कि डायग्राम में शो किया हुआ है, तो थंब रिप्रेजेंट्स द मोशन और फोर्स। थंब तो रिप्रेजेंट करता है मोशन या फोर्स को, जो फोर फिंगर है दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थर्ड द रेस्ट ऑफ द फिंगर और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट और इंड्यूस्ड करंट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के केस में थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, एंड द मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। लाइक दिस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक करंट, this represents the magnetic field, and thumb represents the force. So that rule is Fleming's left hand rule. Read it out. Now remember that EMF to represent electric current, magnetic field and force in anti-clockwise direction of the finger of left hand. So जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि जो EMF रिप्रेजेंटेशन है वो इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का रिप्रेजेंटेशन, तीनों का रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा लेफ्ट हैंड के थ्रू। Force on a moving charge in a uniform electric and magnetic field. So now we have to calculate, already calculated the force which is acting on a charge which is moving in a magnetic field. See, F equals to क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था उसमें होता है F इक्वल्स टू क्यू ई। अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारा टोटल फॉर्मूला जो आता है, टोटल फोर्स अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्ट कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल के, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो टोटल होता है F इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी एज शोन इन द लास्ट इक्वेशन। So this is the overall equation of the force on a moving charge. That equation is very much important for the board examinations. Come on the next one. Force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. Now we have to calculate the force. So these are the field lines which represented by B, that is magnetic field. So these are the charge which is placed, that conductor which is placed in a magnetic field. हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं रख रहे हैं, पैरेलल रखेंगे तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो कुछ इंक्लिनेशन पर रखेंगे। This length is 12. ऐसा ही डेरिवेशन, the same derivation we have already done in the इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी ऐसा ही हमने एक डायग्राम किया था। नाउ वी आर डूइंग द लाइक वेज, उस जैसा ही एक डेरिवेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक चार्ज कंडक्टर को रखा है, कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंडक्टर इज थीटा। लेंथ ऑफ द स्मॉल पोर्शन ले लिया हमने, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया है। टोटल लेंथ का अगर स्मॉल पोर्शन लेंगे दैट स्मॉल पोर्शन इज dl. नाउ the vd is the drift velocity. अंडरस्टैंड कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी
एट विच आवर पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ कंडक्टर, हमारे चार्ज पार्टिकल्स एक कंडक्टर के अंदर जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, सो गो थ्रू। नाउ करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, अगर चार्ज कैरियर्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं सो हमारा करंट इज जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट। दैट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था पिछली वीडियो में भी, अभी हमने देखा लास्ट पेज पर भी हमने देखा कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। बी मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है और एफ हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम। इन दोनों के ठीक बीच में हमारा जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है। नाउ the force which is represented by F equals to QVB sin theta. In such a case, the charge carriers, the Q charge is represented as E electron because electrons are moving in the conductor. तो हमने Q की जगह ले लिया है E, that V velocity of the charged particles ऑलरेडी नोन कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात सुनी हुई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं वो कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, दैट वी डी इज रिप्रेजेंटेड एज दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह हमने वी डी लिख लिया है। और नाउ बी इज सेम, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर भी एक्ट कर रहा है। यस, इफ द एन नंबर ऑफ density of the electrons, A is the area of cross section at the conductor, then the number of electrons in the element is NaDl। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो एरिया इंटू हमने जो लेंथ है उसकी छोटा स्मॉल पोर्शन लिया dl, तो एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम निकला, वॉल्यूम के मल्टीप्लाई नंबर ऑफ चार्ज करें, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हमारे आ गए हैं। नाउ फाइनल फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज अप्लाइड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसके लिए जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट df इज इक्वल्स टू NaDi, और अंदर हमने फॉर्मूला लगा दिया है माइनस EVdB। आगे चेक करते हैं, तो फाइनल हमारा फॉर्मूला आ गया df इक्वल्स टू NeaVd। सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है दैट इज F इक्वल्स टू माइनस NeaVd, और साथ में DL इंटू बी, DL का हमने इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सो एज टू मेड अप दी फाइनल वैल्यू। जो कोलेबोरेशन में हमें सारा वैल्यू करना है तो DL जितने छोटे छोटे पोर्शन हमने लिए हैं उन सभी का क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेट अस टेक इट, इंटीग्रेशन किया तो DF का F हो गया। नाउ टेकिंग I DL इंटू बी, हमने I ले लिया। I क्या है, टोटल करंट है जितना उसमें फ्लो कर रहा है वो नेवा के इक्वल होता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ फाइनल रिजल्ट इज F इक्वल्स टू I क्रॉस B। So that is the final result of that conductor carrying current in a uniform magnetic field. So that is the force acting on the conductor. अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पर कितना लगता है, F इक्वल्स टू QVB sin थीटा। अगर कंडक्टर की बात करें वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगा है, तो F इक्वल्स टू L इंटू I इंटू B। तो जितना भी है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है, हमारी लेंथ कितनी है, सो उससे हमारा फाइनल रिजल्ट निकल जाता है। यहाँ दो रिप्रेजेंटेशन है, I इंटू अंडर ब्रैकेट जो दिया हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज I क्रॉस B। नाउ I बाहर है, अंदर L है। कम ऑन द नेक्स्ट, दैट रिप्रेजेंटेड F फोर्स, टोटल फोर्स इक्वल्स टू आ गया IL B sin थीटा। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमारे दो करंट कैरिंग कंडक्टर आ गए। दैट टॉपिक इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। अगर दो वायर्स हैं, पैरेलल हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन दीज टू वायर्स बट डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दीज टू वायर्स इज सेम। सो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज R, द मैग्नेटिक फील्ड गोज इनसाइड। अगर हम राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर लगाकर चेक करें कि हमारा कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, चेक कर लें। राइट साइड में लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल, I1 करंट के पैरेलल अपना थंब रखें और हमारी जो फिंगर्स हैं रिप्रेजेंट कर रही है, तो दैट मीन्स इट कम्स गोज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इन दिस डायरेक्शन द फोर्स इज एक्टिंग। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ को, करंट हमारा ऊपर की तरफ को।
तो फोर्स हमारा कहाँ लगेगा, F21 टुवर्ड्स द अनदर वायर, दूसरे वायर की तरफ लगेगा. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. This is the magnitude of first. Now F21 force equals to म्यू नोट आई अपॉन 2πr. ये हमारा होता ही है ऑलरेडी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जब हमने डेरिवेशन किया था तो ये रिजल्ट आया था. अभी फोर्स लोरेंस फोर्स हमने निकाला था तो वो आया था आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो आई बी एल साइन 90 डिग्री. बी की वैल्यू हमने डाल दिया म्यू नोट आई अपॉन 2πr. देखते हैं. सो F21 इज इक्वल्स टू म्यू नोट I1 I2 L अपॉन 2πr, क्योंकि फर्स्ट जो करंट है, फर्स्ट के करंट सेकंड के अक्रॉस जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज I2. अब सब फर्स्ट के लिए केस में हमने निकाल लिया, B1 हमने निकाल लिया है. अब हमें B2 निकालना है और उसकी भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो फोर्स जो एक्ट करेगा दैट इज F12. F1 पे फोर्स एक्ट कर रहा है, किसके करंट कर रहा है, 2 के करंट, इसलिए इसकी नेमिंग जो हमने करी है दैट इज F12. जो हमारा वायर है, सेकेंड वायर ये है, इसके पैरेलल यहाँ पर हमारा करंट I फ्लो कर रहा है. अगर हम फोर्स की बात करें तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि ये F1 पर फोर्स लग रहा है और लगा कौन रहा है, 2, तो दैट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F12. सी लाइक दिस. सो बोथ द फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन. चेक कर लें फिर से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, अप्लाइड ऑन द वायर PQ and the current direction is I1. So current is upwards and the magnetic field is outwards and F1 force is acting on the inward direction. Consider it, अगर कहीं पर आपको दिया हुआ है सर्कल के अंदर डॉट है, पहले भी एक्सप्लेन किया था कि that means the magnetic field is outwards. जो magnetic field है वो कहाँ की तरफ है, outwards है, बाहर की तरफ है. यस अगर कहीं पर रिप्रेजेंट किया हुआ है ऐसा, दैट मीन्स करंट इज आउटवर्ड्स, और कहीं पर ऐसा दिया हुआ है दैट मीन्स करंट डायरेक्शन इज इनवर्ड्स. मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में ही हमने B1 और B2 को रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. सो B1 में रिप्रेजेंटेशन है ऐसा और B2 में नो दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ B1 इज लाइक दिस एंड B2 इज लाइक दिस. तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक्स का मतलब है द मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स इनवर्ड्स, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, डाउनवर्ड्स, एंड B2 इज आउटवर्ड्स, ऊपर की तरफ है. नाउ टेकिंग द सेकंड इक्वेशन लेते हैं. B2 इक्वल्स टू म्यू नोट I अपॉन 2πr आ जाएगा. यस नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ B2 इन इक्वेशन, सो दैट फाइनल रिजल्ट इज F12 equals to mu naught I1 I2 I upon 2πr. See, F12 and F21 both are represented as these two values. दोनों की values को compare करें, both the results are same. Now, the angle between I and B2 is 90 degree. So, the B2 is emerging out. B2 बाहर कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ है, अभी बताया था. तो F12 equals to F21 equals to F, that force is between the two current carrying wires. So that is all for today. Revise it. Tomorrow we will discuss two current carrying conductors, but the direction of the current is opposite. In this case, the direction of wire is same. Tomorrow we will discuss the direction of current is in opposite direction. That is all for today.